Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 8th English medium subject English. Friends, we were discussing about lesson Bipin Chaudhary's lapse of memory. In our video number 1, we already discussed about part 1, first part of this lesson. So those who hadn't seen that video, firstly go and watch that video so that you will get the idea about this story. Now part number 2, today we are going to discuss. Bipin Babu's car was safely parked in a Bartharam street by the Lighthouse Cinema. ओके बिपिन बाबू's कार, बिपिन बाबू की जो कार थी वो लाइट हाउस सिनेमा के पास, नियर बाय द लाइट हाउस सिनेमा, ही पार्क्ड हिज कार वेरी सेफली. ओके, सो ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. ओके, व्हेनेवर ही वाज इनटू द कार, ही वाज एंटर्ड इनटू द कार, तो उसने अपने ही टोल्ड टू हिज ड्राइवर, उसने अपने ड्राइवर को कहा, क्या कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू. सीताराम ने कहा कि गंगा के साथ साथ गाड़ी चलाओ. विल यू ड्राइव द कार विथ गंगा. ओके, ड्राइविंग अप द स्टैंडर्ड रोड. ओके, उसने कहा कि तुम जो है वो स्ट्रैंड रोड के ऊपर गाड़ी चलाते रहो. ओके, यू कैन ड्राइव द कार ऑन अ स्ट्रैंड रोड. बिपिन बाबू रिग्रेटेड having paid so much attention to the intruder, he had never been to Ranchi. Now बिपिन बाबू जो है वो उसने उसको क्या नाम दिया था कि रिग्रेटेड. ओके, तो वो घूसपेठिया, उसने उसको समझा कि भाई उसकी और ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज ही hadn't visited Ranchi. बराबर, वो कभी रांची गए थे ही नहीं थे. No question about him. He thought that he hadn't visited Ranchi. Then why unnecessary discussion he had to made with that person. Okay, and why he was spending he was wasting his time behind that person just because he know that he hadn't visited Ranchi. So no need to discuss about that incident because he know very well about that incident. He was inconceivable that he should forgot such an incident which took place only 6 or 7 years ago. अब वो ये उसके लिए ये जो क्वेश्चन हो रहा था, वट एवर द क्वेश्चन वॉज अराइजिंग टूवर्ड्स हिम, दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज. वो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेंज था कि वो एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में, हाउ ही कैन फॉरगेट अबाउट दैट इंसिडेंट that was happened just before 6 or 7 years ago. बराबर, जो 6-7 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो उसको कैसे भूल सकते हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, whatever the incident were happened before that was into your childhood, if you are forgetting about that we can understand. बराबर, वो हम समझ सकते हैं. but before 6 or 7 years ago, whatever the incident, whatever the incident was happened, and that person told him that you forgot him, how it was possible? It was not possible. He had an excellent memory. ओके, वो अपने आप को ऐसा मानते थे. ही बिलीव दैट ही हैड गुड मेमोरी पावर अनलेस बिपिन बाबूज हेड रिलीड. ओके, हेड रिलीड का मीनिंग दिया है, ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड इन बोथ द सिचुएशन. ही वॉज गेटिंग इन टू द बोथ सिचुएशन. बिपिन बाबू मानते थे कि उसकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है. और whenever he met that person who was trying to convince him that once he was visited Ranchi and describe about the some incident, some meeting that was happened with that person into the Ranchi. So this type of the talk or this type of the memory was getting into the shocked and confused situation to Bipin Babu. Okay, so Bipin Babu getting very confused about this. Was he losing his mind? वो उसको कहता है कि क्या वो पागल हो रहा था, क्या वो पागल हो, जैसे losing his mind means becoming mad. He was becoming mad, but now could that be? बराबर, वो क्या कहते हैं, वो how could he that be? वो ऐसा कैसे कर सकता है. He was working daily in his office. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. बराबर, तो वो उसकी ऑफिस के अंदर डेली काम, अपने ऑफिस के अंदर डेली काम कर रहा था. ही वॉज वर्किंग डेली
वो बराबर है, इट वॉज अ बिग फिल्म, बराबर एक बहुत ही बड़ी फिल्म थी वो, एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब एंड दैट पर्सन वॉज डूइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क, ओके, वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम कर रहा था. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग टू सीरियसली रॉन्ग, ओके. तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई खराब या कोई गलत काम हुआ हो उससे, बराबर कोई रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग थिंग उसने कभी की नहीं थी, ऐसा उसको लग रहा है. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर अ हाफ एन आवर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड यट, और आज जो है वो याद करते हुए, अपने आप को याद करते हुए कहते हैं आज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और उसके अंदर मैं लगभग हाफ एन आवर आई वॉज स्पीकिंग, बराबर आधे घंटे तक मैं बोल रहा था, और जो वट एवर द मेमोरी ही कैन रिमेंबर, ही वॉज trying to remember about his memory because he got the doubt that he has losing his memory, okay, this slowly, and yet the man knew a great deal about him, बराबर है. और फिर भी वो जो पर्सन है वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता था, मतलब what lot of the thing, बराबर उसके रिलेटेड बहुत जानता था. हाउ, कैसे, ये कैसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा उसको मेरे बारे में कैसे पता होगा. Okay, he was getting confused. Bipin Babu was getting confused that how this person getting the idea or getting the information about him. He even seemed to know some intimate details. Okay, तो कुछ इंटीमेट डिटेल्स, मतलब जो पर्सनली जो इंफॉर्मेशन थी वो भी उसके पास थी, मतलब फैमिली के रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ही वॉज ऑल्सो टेलिंग हिम अबाउट हिज फैमिली डिटेल. हाउ कुड the bag of books, okay, wife's death, brothers instantly, ये सारी चीज़ें तो मेरी पर्सनल ही थी, बराबर. हाउ कैन दैट के मेरी बैग और बुक से मेरा खास लगाव है. उसकी वाइफ की डेथ के रिलेटेड उसने बात की, उसका भाई जो है वो पागल हो गया था, उसके बारे में उसने बताया. तो हाउ कुड ही नो अबाउट ऑल दिस थिंग, बराबर है, वो उसको कैसे ये सब पता चला. The only mistake was about his having gone to रांची, बराबर. गलत बात उसने एक ही बोली थी, क्या बोली थी, कि मैं रांची गया था, बाकी उसने सब कुछ सही बताया था. नॉट अ मिस्टेक, ये गलती नहीं थी. ओके, डेलिब्रेट लाई, बराबर उसने डेलिब्रेट लाई मीन्स एक जानबूझ के उसने झूठ बोला था. ही वॉज स्पीकिंग लाई डेलिब्रेटली. In a 15/8 during the Pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Buggy's place. Okay, तो उससे फिर से again he was remembered about that incident in the year of 58. He was into the पूजा, मतलब वो एक पूजा उत्सव के अंदर थे उस टाइम पे, अपने फ्रेंड के घर पे जिसका नाम क्या था, हरिदास बागची, बराबर. हरिदास बागची के घर पे वो था. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, बराबर है. तो ऑल जो भी उसने कुछ बिपिन बाबू जो था वो अब केवल हरिदास को लिखना था. क्या लिखना था, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, हरिदास को लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. वाई आई राइट टू हरिदास. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago. अचानक उसको याद आता है कि हरिदास को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है. there is no benefit to write a हरिदास just because हरिदास जो है वो अपनी वाइफ के साथ फ्यू वीक्स के पहले, कुछ वीक के पहले कहाँ चले गया था, जापान चले गया था. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और जापान का एड्रेस तो उसके पास था ही नहीं, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन उसको वो तो फ़ायदा नहीं था. लेकिन बिपिन बाबू को याद आया कि प्रूफ की ज़रूरत कहाँ है, बराबर. मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है. आई नो दैट आई हैडंट विजिटेड द रांची एंड वाई डिडंट आई नीड अ प्रूफ. मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट, वो अब खुद ही जानता था,
पूरा अवेयर था कि वो ही हैडंट विजिटेड रांची, बट दैट पर्सन was trying to convince Bipin Babu that he visited to Ranchi. So this kind of the situations made in trouble to the Bipin Babu. So मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था, तो मुझे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं थी. And that was that. Okay, the river breeze was breaching, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. अब क्या हो रहा था, वो कभी गया ही नहीं था, ये एक फैक्ट था, दिस वॉज द फैक्ट. अब नदी की ओर जैसे आने वाली जो ठंडी ठंडी पवन थी, बराबर है, वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, बराबर, और वो उसके दिमाग की ओर जा रही थी, और उसको बिपिन बाबू को जो था, उसका जो मन था, उसके मन के अंदर वो हल्की सी बेचैनी लग रही थी, बराबर. वो लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड मीन्स ही वॉज फीलिंग डिसकम्फर्टेबल अबाउट दिस सिचुएशन. स्लोली उसको डिसकम्फर्टेबल लग रहा था. Around hesitating, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. और उसने सोचा कि हाँ, उसने मेरे घुटने के बारे में बात की थी. He was talking about my knee. तो उसने क्या किया कि अपना ये जो क्या था, उसका ट्राउज़र था, उसको ऊपर कर लिया, और he was trying to जो लपेट लिया, मतलब राउंड करके ऊपर चढ़ा लिया, और उसने अपने घुटने को एक बार देखने का ट्राई किया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि भाई वो घुटना वहाँ पे कट हो गया था. तो उसने सोचा कि अगर मैं गया हूँ और भूल गया हूँ, इफ़ आई वेंट देयर एंड इफ़ आई फॉरगॉट अबाउट दैट इंसिडेंट, तो कट तो वहाँ पे होगा. देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, बराबर. तो वहाँ पे उसने जैसे ही अपना घुटना देखा, तो वहीं 1 इंच लंबा कट का निशान था, बराबर. वहाँ कट का निशान था जो उसको खुद को नहीं पता था, लेकिन उस पर्सन को तो पता था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड. लेकिन वो बताना मुश्किल था कि ये इंजरी कब हुई थी, बराबर. तो बिपिन बाबू ने देखा कि भाई उसको तो ये बात भी सही निकली कि वॉट एवर द इंसिडेंट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कट ऑन हिज नी, ये बात भी सही निकली. नाउ व्हाट विल हैपन, अब तो उसको मानना ही पड़ेगा. He had never had a fall as a boy and cut his knee. उसने सोचा कि शायद बचपन में मैं कभी गिर गया हूँ, या मेरा घुटना कभी ऐसा मैंने अपना मतलब घुटना कभी ऐसा कट हो गया हो, ऐसा हो सकता है, बराबर. ऐसा तो नहीं हुआ था बचपन के अंदर. He tried to recall such an incident but he couldn't. He was trying to recall, मतलब वो याद करने की कोशिश कर रहा है. He was trying to recall about the incident कि भाई मैं कभी गिर गया था, मेरे घुटने में चोट लगी थी, कहीं भी कुछ ऐसा इंसिडेंट, whatever the incident was happened with him, he was trying to remember, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था. बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. अचानक उसको किसकी याद आ गई? दिनेश मुखर्जी की याद आई. ही वॉज थॉट अबाउट दिनेश मुखर्जी. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. और उस पर्सन ने, दैट पर्सन हु वॉज टॉकिंग अबाउट द दिनेश, ही वॉज ऑल्सो इन टू द रांची, बराबर. वो भी उस टाइम पे रांची में था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. तो सबसे अच्छा होगा कि ही वॉज आस्किंग टू मिस्टर दिनेश मुखर्जी. तो बिपिन बाबू डिसाइडेड दैट ही विल आस्क दैट पर्सन whose name was Dinesh. Okay, so he lived quite near, मतलब वो बहुत ही पास में रहता था. जिसका नाम क्या था, जिसका यहाँ पे उसका नाम दिया गया है उस प्लेस का जहाँ पे वो रहता था. वेन एवर द दिनेश मुखर्जी वॉज लिव्ड बेनिंदान स्ट्रीट इन विच दिनेश मुखर्जी वॉज लिव्ड. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ बट देन, बराबर. तो वो कहता है वो तो पास में ही रहता है, ठीक है, लेकिन अभी उसके पास जाना कैसा रहेगा? राइट नाउ आई विल गो टू दैट दिनेश मुखर्जी, इजंट इट fair or not? He was getting confused again. But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think of Bipin Babu asked for a confirmations? Okay, लेकिन उसको एक दूसरा विचार आता है मन के अंदर. वो सोचने लगता है कि अगर मैं रियल में, इफ़ आई हैडंट विजिटेड रांची इन रियली, अगर मैं रियली के अंदर रांची नहीं गया हूँ, तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा? व्हाट दिनेश विल थॉट अबाउट मी,
बराबर। तो लेकिन उसको तो कंफर्मेशन चाहिए था, ही नीड अ कंफर्मेशन दैट ही हैडंट विजिटेड द रांची, सो दैट्स व्हाई ही sorry, that's why he need to meet the Dinesh. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts, बराबर। तो वो उसको प्रूफ चाहिए था, तो शायद उसको ये चीज़ की ज़रूरत थी। नो इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, फिर वो सोचता है कि भाई नहीं, उसको पूछना अच्छा नहीं रहेगा, बराबर। तो क्या मैं उसको पूछूं, इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम और नॉट, वट एवर द वट आई हैव टू डू, बराबर, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत बड़ी एक रिडिक्यूलस सिचुएशन में फंस जाता है। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रीम कुड बी, और वो जानता था कि दिनेश जो है वो कितना मतलब ऐसा नेचर का था, दिनेश ऐसे नेचर का था, स्कैज़म मतलब कि वो दूसरों की मजाक उड़ाने में एक नंबर था। इफ़ दिनेश वंस नो अबाउट दिस इंसिडेंट, तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनने वाला था, वो भी उसको पता था। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Now Bipin Babu जो है वो अपने AC के रूम में बैठकर आराम से एकदम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और वो बिपिन बाबू आराम से बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और फिर उनका जो दिमाग है वो कैसा हो गया, एज अगेन, मतलब कि एकदम शांत हो गया। ही वॉज गेटिंग पीस। सच अ न्यूशंस, बराबर। वो कहा कि क्या न्यूशंस फैला के रखा है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता है, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, बराबर। वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का काम करते हैं, बराबर। हम बोलते हैं ना, जिसको जो एकदम फ्री बैठा रहता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है। तो उसको सोचता है कि नो नीड टू आस्क अबाउट, नो नीड टू थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट। आफ्टर डिनर, अब उसने खाना खा लिया रात का, संगलिंग इन अ बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब वो जैसे नया जो उसकी पास बुक, उसको ही वॉज हैबिचुअल टू रीड अ बुक्स, ओके, उसको बुक्स रीड करने का बहुत शौक था, और ख़ास करके स्पेशली ही वॉज रीडिंग अ बुक विद द थ्रिलिंग इंसिडेंट, थ्रिलिंग स्टोरी। सो एक नई थ्रिलिंग स्टोरी लेकर वो वापस बेड के अंदर सोने जा रहा था। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन अ न्यू मार्केट, बिपिन बाबू जो था वो उस न्यू मार्केट के अंदर जो पर्सन उसको मिला था उसके बारे में, वॉट एवर द टॉक्ड वर देयर, वो सब कुछ वो भूल गया था। नेक्स्ट डे इन अ ऑफिस, अब दूसरे दिन की, वेन एवर ही वेंट टू द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर the previous day encounter was occupying more and more in his mind. Whenever next day Bipin Babu went to his office, he feels that, उसको feels होने लगा कि जैसे जैसे हर एक घंटा जो बीतते जा रहा है, whenever the one hour was passing, तो उसको जो लास्ट डे था उसकी जो इंसिडेंट थी वो whenever he met that person, वो ज़्यादा से ज़्यादा याद आ रही थी उसके दिमाग में, वो सारी चीज़ें घूम रही थी ऑफिस के अंदर कि कल वो पर्सन कैसे उसके साथ बात किया, क्या मिला, किस तरीके से उसने बात की, वॉट एवर द इंसिडेंट ही वॉज रिमेंबर्ड अबाउट द रांची, और ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। इफ़ द मैन न्यू so much about Bipin Babu, that person was knowing everything about Bipin Babu, his family, his brother, his wife, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो इतना सारा कुछ जानता था, तो वो रांची के ट्रिप की भूल कैसे कर सकता है? शायद वो सही कह रहा हो, तो शायद मैं रियल में भूल गया हो। तो जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, तो उसने डिसाइड किया कि लंच करने से पहले, बिफोर आई विल टेक द लंच, उससे पहले मैं दिनेश मुखर्जी को एक रिंग करूँगा, एक फ़ोन करूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, उससे अच्छा रहेगा कि उसके घर जाकर डिस्कस करने से अच्छा रहेगा। इट इज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन, वॉट एवर द क्वेश्चनिंग वर मूविंग इन हिज माइंड, ही वॉज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन on the phone only. So he was decided that before taking the lunch he called Mr. Dinesh Mukherjee. At least the embarrassment on his face wouldn't show, तो उसके चेहरे पे जो embarrassment होगा
बराबर है वो उसको दिखाई नहीं देगा, बराबर। उसके चेहरे की जो परेशानी है वो सामने फ़ोन पे तो नहीं दिखाई देगी एटलीस्ट, बराबर है। 234616 दिस इज द नंबर बिपिन बाबू डायल्ड एंड दैट हेलो इज दिस दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। और वो बोलता है कि दिनेश मैं बिपिन बोल रहा हूँ। तो बोलता है वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़। वो कहता है कि अच्छा अच्छा क्या न्यूज़ है, वॉट एवर द न्यूज़, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू आर रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1558। तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो, मुझे ये जानना था कि तुम्हें कोई ऐसा इंसिडेंट, इफ़ यू आर रिमेंबर अबाउट द इंसिडेंट, तुमको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो 58 में हुआ था। तो वो कहता है 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 कौन सा इंसिडेंट, वेर यू इन अ कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गो टू नो। तो एट दैट ईयर यू वर इन टू द कोलकाता, तुम कोलकाता में थे, तो मुझे फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो कहता है एक मिनट, वेट अ मिनट, इफ़ यू आर टॉक अबाउट द ईयर 58 आई वॉन्ट टू चेक माई डायरी, मुझे मेरी डायरी चेक करनी पड़ेगी। फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस, मीन्स दैट पर्सन दिनेश वॉज चेकिंग हिज डायरी। तो एक मिनट के लिए फॉर अ मिनट साइलेंस हो जाता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड ग्रोन अप, उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही थी बिपिन बाबू की। ही वॉज स्वेलिंग अ लिट, और उसको पसीना भी छूट रहा था। अगेन दिनेश उसको फोन पे कहता है हेलो यस सॉरी आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वो डायरी में पढ़कर बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। इन द ईयर 58 आई वेंट ट्वाइस, बराबर, आउट स्टेशन। तो बोलता है कहाँ, तो वंस इन अ फेब्रुआरी नियर बाय द कृष्णा नगर टू अ नेप्यूज वेडिंग। वंस मीन्स फर्स्टली आई वेंट टू कृष्णा नगर, तो मैं कृष्णा नगर गया था मेरे नेप्यू की शादी के अंदर, बराबर, भांजे की शादी के अंदर मैं गया था कृष्णा नगर। एंड देन बट यू डोंट नो अबाउट दिस वन, लेकिन आपको पता नहीं है, द ट्रिप टू रांची यू आर हियर टू। तो वो कहता है कि दूसरा तुम जानते हो कि रांची गए थे और वहाँ तुम भी थे, यू आर ऑल्सो देयर, दैट्स ऑल। बस हम 2 ही बार गए थे, एक बार मैं कृष्णा नगर गया था और दूसरी बार मैं रांची गया था। और कृष्णा नगर के बारे में यू डिडंट नो, बट इफ़ यू आर टॉक अबाउट द रांची, यस यू नो बिकॉज यू ऑल्सो विथ मी, दिनेश टोल्ड हिम। दिनेश कहता है कि भाई तुम भी मेरे साथ थे रांची की ट्रिप में 58 में, दैट्स ऑल, बस इतना ही गए थे और कहीं नहीं गए थे। बट व्हाट्स ऑल द सैल्यूटिंग अबाउट, बराबर, तो इतना तुम खोज क्यों कर रहे हो, इतनी तुम मतलब जांच क्यों कर रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू एनी वे थैंक्स। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो रुक जाता है, कहता है जस्ट आई वांटेड टू, मुझे जानना था कि ओके एनीवे थैंक्स। और कहते हैं बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन टू द ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, और अचानक से रिसीवर को सब पटक के नीचे रख देता है और अपने हाथों से एकदम फिर से टाइटली ही वॉज केप्ट दैट रिसीवर ऑफ फोन। ही फेल्ट हिज हेड स्वेलिंग, और उसको लगता है कि उसका सिर चिकरा रहा है, मतलब उसको चक्कर जैसा आ रहा था। चिल्ड सीम्स टू स्पीयर ओवर हिज बॉडी, बराबर, तो वो अपने शरीर के अंदर एक मतलब कमी सी उठ जाती है उसके अंदर। देयर वर अ सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे। लेकिन ये जो शॉक उसको मिला था, वॉट एवर द शॉक ही वॉज गेटिंग, कि उसको रांची के बारे में कुछ याद नहीं था और 2 प्रूफ मिल चुके थे। वंस ही वॉज मेट द पर्सन परिमल एंड अगेन ही जो दिनेश है उसने जो प्रूफ दिया कि भाई हाँ रांची की ट्रिप तो थी लेकिन उसको तो कुछ याद ही नहीं है। बट ही डिडंट ईट हिम, तो वो टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे उसके फेवरेट, बट हाउ कुड ही ईट, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ चुका था। ही हैड लॉस्ट हिज हेप्टाइल, और वो उसकी भूख जो थी वो मर चुकी थी। हेप्टाइल मीन्स भूख जो थी वो मर चुकी थी। तो फ्रेंड्स टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट नंबर 2। आई होप you guys can understand about this part. Okay, in our next video we will discuss about part number 3 of the same lesson. Okay friends, related to this video, whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF that you have to write down in your notebook. Friends,
We will meet in our next video and discuss about the further remaining part, third number part of this lesson. Bye, take care.